Hello everyone, I am Dr. Diksha Pandey and in today's video we'll be talking about my GT journey, how I scored from 135 to 210. But before that I want to share an incident. So recently someone commented on my YouTube video that एफएमजी जैसा बेकार एग्जाम दे के 10 वीडियो बना रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि 10 नहीं अभी 100 वीडियो बनेंगे और आगे भी बनते जाएंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव बैक टू माई एफएमजी कम्युनिटी। सो यूट्यूब रील शॉर्ट्स सब बनेगा। So the in return what I want from you all is like, share and subscribe to my YouTube video because there are lots and lots of videos and ideas which are lined up and it will be coming your way in future. So don't forget to subscribe. I also make an FMG Notion template for you all. So that template contains subject checklist, resource checklist, along with revision tracker, GT checklist, and GT tracker. So if you want that Notion template, you just have to comment FMG template and I will send it to you. Let's talk about my GT story. So in September, मेरा score था 135 और by the end of December it was 210. So there are few points which I keep in mind during my GT journey that made this drastic change from 135 to 210 marks. So I want to share that points with you all so that you can also increase your GT score and not get stuck to the same score and get irritated. Because मुझे भी पता है जब मेरा 132, 135 and 145 पे अटका हुआ था स्कोर, कितनी इरिटेशन हो रही थी कि रिवीजन कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, क्या मुझे चेंज करना चाहिए। सो क्या आपको चेंज करना चाहिए ये मैं आज बताऊंगी। सो फर्स्ट थिंग, इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन रॉन्ग, लाइक आप जीटी दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, सबसे पहले जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आप अपने नोट्स पे जाओ, गो टू योर नोट्स, रिवाइज दैट टॉपिक, देन ओनली यू नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज वो जो क्वेश्चन एक बार गलत हुआ है, अगर आप अभी रिवाइज नहीं करोगे तो दोबारा हाई चांसेस है कि आपको नेक्स्ट जीटी में वो क्वेश्चन गलत करोगे या वो टॉपिक गलत करोगे। सो मेक श्योर टू रिवाइज दैट टॉपिक। सेकेंड थिंग इज गिव जीटी एज योर रियल एग्जाम। सो रियल एग्जाम की तरह हमें क्यों देना है जीटी? फर्स्ट थिंग दैट इट विल मेक यू लाइक योर माइंड रेडी फॉर एग्जाम, रियल एग्जाम, तो वो एग्जाम की जो एंग्जाइटी होती है वो नहीं होगी। सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स यू विद द टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपरली आप 1 मिनट में एक एमसीक्यू कर सकते हो एंड यू नो कि वो 300 क्वेश्चन में कैसे गिवन टाइम लिमिट में कर सकूं। सो हियर आर simple thing that get up early, revise your 20th notebook, give part 1 आप अपना दे दें एंड मेक श्योर कि आपका फ़ोन ऑफ हो, हैव अ बॉटल ऑफ वाटर and then you can take break for like 45 minutes or 1 hour, it depends upon you, and then give part 2 and review it on the same day. I have seen that few students review it after 1 week, कुछ लोग जो है 5 दिन ले लेते हैं, कुछ लोग 6 दिन, बट अगर आप उसी दिन रिव्यू करोगे तो it is high chances that that information will be retained inside your brain and you will revise that information for longer duration. So make sure कि आप उसी दिन रिव्यू करो, बिकॉज अगर आप अभी बुक मार्क किसी भी एमसीक्यू को कर दे रहे हो, फिर एक हफ्ते बाद आप वो एमसीक्यू देख रहे हो एंड यू विल बी लाइक मैंने क्यों इसको बुक मार्क किया था, क्या रीज़न था, आपको पता ही नहीं। सो मेक श्योर you will review on the same day. And the third thing is how to analyze your GT. So to analyze your GT, the simple thing that everyone is like कि GT दे दो, GT दे दो, GT दे दो, लेकिन अगर आप GT एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, GT के स्कोर से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से टॉपिक हैं जिस पे आपको काम करना है, तो आप 10 GT दो या 20 GT दो, उसका कोई मतलब नहीं है। GT को एनालाइज करना और GT को रिव्यू करना, दीज 2 थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू एनालाइज योर GT? Firstly, you need to know whether the problem lies in a specific subject or lies in the specific question. If it is lies in the specific subject, go to rapid revision
or your notes which you already have, and revise it thoroughly with concept. Revise that topic thoroughly with the concept. बिकॉज अगर किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो मे बी आपने वो सब्जेक्ट इनफ रिवाइज नहीं किया हो, अच्छे से पढ़ा ना हो, या जो भी इशू होगा वो जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो इशू सॉल्व नहीं होगा. सेकेंड थिंग इज वेदर द प्रॉब्लम लाइज इन स्पेसिफिक क्वेश्चन. If the problem lies in a specific question, then you need to analyze whether the question is fact based or concept based. If the question is fact based, then the only thing is revision. Like fact based MCQ हो गए, या MCQ में जो होते हैं formulas हो गए, या फिर एक certain value हो गई, that things comes into the fact based. Concept based, अगर प्रॉब्लम है देन गो टू दैट टॉपिक, अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, सो दैट अगर अगली बार उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन आया, कोई और क्वेश्चन आया, तो आप अगले जीटी में या मेन एग्जाम में उसको गलत नहीं करेंगे. दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज योर जीटी. एंड विद जीटी अगर 4 ऑप्शन है तो मेक श्योर यू नो दैट कि वो चारों ऑप्शन किस किस टॉपिक से लिए गए हैं. अगर बी ऑप्शन सही है तो वाई बी इज राइट, वाई ए सी एंड डी इज नॉट राइट, एंड ए सी एंड डी से हम क्या क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर अगर एग्जामिनर बनाना चाहे, बिकॉज यू नो कि अब एफएमजी का लेवल बढ़ते जा रहा है विद अपकमिंग डेज. सो मेक श्योर you see not only the correct answer but also the incorrect along with their options. Fourth point is 20th notebook. As I said earlier कि get up early and revise your 20th notebook or your छोटी copy or any concise note that you already have made. Make sure to concise your होल टॉपिक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप पूरा वो 19 सब्जेक्ट के सारे नोट्स नहीं पढ़ सकते. तो कंसाइज इट एंड रिवाइज इट थॉरली. जितना ज़्यादा आप उस 20th नोटबुक या पीवाईटी टॉपिक्स को रिवाइज करोगे उतने ही जल्दी आपके स्कोर्स बढ़ते जाएंगे और उतना ही ज़्यादा आपके स्कोर्स बढ़ते जाएंगे. दिस इज़ व्हाट आई हैव डन ड्यूरिंग माय एफएमजी प्रिपरेशन. एंड रिव्यू जीटी थॉरली. एज आई सेड कि जीटी देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको एनालाइज करना, उसका रिव्यू करना. सो आप रिव्यू कैसे कर सकते हैं कि जो भी इनकरेक्ट हैं आइदर गो एट दैट टाइम कि तुरंत उस टॉपिक को जाके तुरंत पढ़ लिया, और यू कैन मेक अ जीटी मिस्टेक बुक, and that GT mistake book will have all the questions which are PYTs and PYTs and along with आपको ये भी देखना है, लाइक ऐप में अब ये भी बताता है कि अगर आपने ये क्वेश्चन लाइक गलत किया है तो क्या 70% ऑफ पीपल हैव डन इट करेक्टली. अगर 60% और 50% ऑफ पीपल हैव डन इट दैट क्वेश्चन करेक्टली, इट मीन्स कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही हमको जीटी बुक में डालना है, नॉट एवरी XYZ, बिकॉज जीटी में बहुत ही इधर उधर के भी फालतू क्वेश्चंस होते हैं, वी नो दैट. सो हमें वो सारे क्वेश्चन जीटी बुक में नहीं डालने, ओनली दो क्वेश्चन जो कि 60 to 70% और 50% लोगों ने सही किए हैं बट आपने गलत किए, ओनली दैट इम्पॉर्टेंट PYTs एंड दैट क्वेश्चन शुड बी इन योर जीटी मिस्टेक बुक. एंड जीटी टाइमिंग. सो जीटी टाइमिंग इज डिपेंड अपॉन कि आपका कितने महीने बचे हैं एग्जाम के लिए. लाइक इफ 6 months आर लेफ्ट then make sure to give 2 GT monthly, and if 2 months are left then per week आपको एक GT देनी होगी and review it, analyze it the same way which I have said earlier कि कैसे analyze करना है, कैसे review करना है. एंड गुड जीटी स्कोर. एवरीवन इज लाइक कि मेरे जीटी स्कोर अच्छी चाहिए, अच्छी चाहिए. सो सिंपल सा फॉर्मूला है, जीटी स्कोर अच्छे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो उस टॉपिक को, और जो भी आपके वीक सब्जेक्ट हो उसको स्ट्रांग बनाओ. सिंपल, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे जीटी स्कोर बढ़ जाएंगी. द मोर यू विल रिवाइज द मोर यू आर गेटिंग हायर चांसेस कि आपके जीटी के स्कोर बढ़ें. एंड वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू ऐड टू इट कि जीटी के जो भी स्कोर्स आते हैं, वेदर इट इज above 200 or whether it is below 150, don't take it very to your heart
कि आप ये बोल दिए कि अगर मेरा 200 आ गया अब तो एफएमजी के लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आराम से सोऊंगा, मैं तो क्लियर कर लूंगा। दिस इज नॉट हाउ यू हैव टू गो, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि 210 मेरा आया था, बट एक्चुअल एग्जाम में मेरा आया 184। सो अगर आपके 200 प्लस आ रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट श्योरिटी कि आपका एग्जैक्ट सेम मार्क्स आपके रियल एग्जाम में आएगा। और अगर आपके बिलो 150 आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। विद अपकमिंग डेज आपको इम्प्रूव करना है सो दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। एंड just simple things. I want to summarize this simple things. Give GT, review GT, analyze GT, and give GT as like your real exam so that you learn the time management thing. एग्जाम की एंग्जाइटी कम होगी, बिकॉज आई नो कि एंग्जाइटी की वजह से ही मेरे स्कोर जो डाउन हुए वो एग्जाम के एंग्जाइटी की वजह से हुआ था आफ्टर फर्स्ट पेपर। सो आई डोंट वांट कि आप लोग भी वो चीज़ें झेलो। तो मेक श्योर कि आप एकदम रियल एग्जाम की तरह दें, बिकॉज मैं जब दे रही थी मैं आराम से बैठ के दे रही थी। स्टार्टिंग के 2 जीटी मैं एक जीटी एक दिन दिया, दूसरी जीटी दूसरे दिन दिया, तो आराम से फैल के जो है जीटी दे रहे थे। तो दिस इज सम मिस्टेक विच आई हैव डन, कि आराम से जीटी देना, एक जीटी एक दिन देना, दूसरी जीटी दूसरे दिन देना, और रिव्यू एक हफ्ते बाद देना। दिस वॉज द सेकेंड मिस्टेक। थर्ड, कि मैंने जीटी मिस्टेक बुक किया, फिर तुरंत उसको उसी टाइम जाके अपने मेन नोट से पढ़ा या याद नहीं किया। थर्ड मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक विच आई हैव डन ड्यूरिंग जीटी, दैट मैं सिर्फ जीटी देते ही जाती थी। लाइक आई हैव गिवन अराउंड 11 जीटीज एंड आई हैव नॉट रिव्यू ऑल जीटी करेक्टली। सो वन आई फील कि ये जो 4 या 5 मिस्टेक्स हैं वो आप ना करें। दैट्स द ओनली रीजन आई मेड दिस वीडियो, that you don't do this GT mistake. Learn from my mistakes and I hope that your GT scores increase. And at the end, just one thing, रो के पढ़ो, पढ़ के रो, गिव यू 100% टू दिस एग्जाम। आपने वो 150 क्रॉस कर दिया या 200 प्लस लेते आए, सो दैट विल बी फॉर योर होल लाइफ। एंड just give it your 100%, and with that I will end this video and see you in the next. Bye.